Hello dear students, welcome you all again in the class of discrete mathematics. Now today's topic is partial order relations and this is the first video lecture on this topic. So I Dr. Bharat Goyal from Department of Mathematics, GSS DGS Khalsa College Patiala, welcome you all in this video lecture. So firstly we will discuss about what is a partial order relation. The partial order relation is a relation which is defined over a set and must satisfy these three properties. Number one is reflexive property, number two is antisymmetric property, and number three is transitive property. And the set over which this partial order relation is defined is known to be poset, partially ordered set. The relation is also called partial order and the set is also called partial order. And the short form of partially ordered set is poset. P for partial, O for ordered, and set. Partial ordered set. And the relation is called partial order relation. So set A together with the partial ordering R is called partially ordered set, poset for short. Now you all are aware of what is a reflexive relation, what is a antisymmetric relation, and what is a transitive relation. The major difference between an equivalence relation and a partial ordered relation is that the property holds symmetric, the relation holds symmetric in the case of equivalence relation, but the relation holds antisymmetric property in the case of partial order relation. Just there is a difference of only one property, that is in the equivalence it is symmetric and in the partial order relation it is antisymmetric. We will discuss also one by one what do you mean by, again I am repeating here what in the next slides we will repeat what is a reflexive relation, what is antisymmetric, and what is a transitive relation. Now one thing which you have to take care here is we would write less than or equal to, the symbol less than or equal to in place of the symbol R when two elements are related. Like in the previous lectures of relations on equivalence relations, I have always write that A is related to B like this. A is related to B. इस तरह से हम लिखते आए हैं, या फिर R की जगह ये वाला सिंबल हम यूज कर लेते थे. इसका भी मतलब था A is related to B. But for partial order relations, we shall not use the symbol R. In place of this symbol, we will use the symbol less than or equal to. A less than or equal to B. It does not mean that we are comparing the numeric value of A and B and saying that A is less than B numerically, less than or equal to B numerically. Here, the symbol less than or equal to simply means the relation. A is related to B. That's why I am reading here what I have wrote here. Since the relation less than or equal to on the set of real numbers is the prototype of a partial order, it is common to write less than or equal to represent an arbitrary partial order on A. तो ये वाला जो सिंबल है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, दो कोई वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, बट हियर वी शैल कॉमनली यूज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट an arbitrary partial order on A. So according to this symbol, the partial order properties will be defined like this. Reflexive property, we will write A less than or equal to A for every A belonging to A. The relation must be a reflexive relation for partial order. So every time we will write like this, A less than or equal to A for every A belonging to A. The meaning is same.
that means A is related to A for every A, means every element is related to itself. And for antisymmetric, the antisymmetric property says if A less than or equal to B and B less than or equal to A less than equal to A related to B है और B related to A है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास? A must be equal to B. That is called the antisymmetric property. ये सिमेट्रिक के एंटी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक. क्योंकि यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से रिलेशन होगा, A रिलेटेड टू B भी होगा और B रिलेटेड टू A भी होगा, तो ऐसा रिलेशन दोनों तरफ से तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट्स बराबर हो. जबकि सिमेट्रिक हमें क्या कहता था कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, मींस अगर रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 भी जरूर होना चाहिए. एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं. अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है हमारे पास, उसमें ये पेयर है 1,2, तो सिमेट्रिक हमें फोर्स करता था कि 2,1 भी उसमें होना चाहिए अगर दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. लेकिन अभी एंटीसिमेट्रिक क्या कहेगा? अगर 1,2 है और 2,1 भी आपके पास, तो 1 और 2 क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. बट ये ऐसा नहीं होता. 1 और 2 जो है न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब एंटीसिमेट्रिक क्या कहेगा? फिर आप एक ही पेयर लीजिए इनमें से, या 1 2 ले लीजिए या फिर 2 1 ले लीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों लेंगे तो फिर 1 इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक. सिमेट्रिक के एंटी है. सिमेट्रिक कहता है कि दोनों के दोनों पेयर्स आने चाहिए, 1,2 भी आना चाहिए, 2,1 भी आना चाहिए. बट एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि दोनों पेयर्स नहीं आने चाहिए. आप सिर्फ एक ही पेयर को ले सकते हैं, या 1,2 लीजिए या 2,1 लीजिए. अगर आप दोनों को लेंगे तो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं. दैट्स व्हाई इसको एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं. और यही डिफरेंस है इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. और थर्ड प्रॉपर्टी वही ट्रांजिटिव, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C implies A must be related to C for every ABC belonging to A. अभी हम इसके बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे. तो पहली एग्जांपल है द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स. यहां पर लेस देन और इक्वल टू सिंपल यूजुअल कंपैरिजन करना है आपको, न्यूमेरिक वैल्यूज को ही कंपेयर करना है. ये यूजुअल लेस देन और इक्वल टू का ही रिलेशन है. और सेट हमारे पास कौन सा गिवन है? सेट ऑफ इंटीजर्स. तो इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे. जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज A लेस देन और इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू Z. हर एक इंटीजर को आप खुद के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं A लेस देन और इक्वल टू A. जैसे मान लीजिए 2 लेस देन और इक्वल टू 2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि लेस देन नहीं है बट इक्वल तो है, क्योंकि और इक्वल टू ये ऑप्शन है हमारे पास. तो हर एक इंटीजर के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नाउ एंटीसिमेट्रिक, अगर आप कहेंगे हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, A लेस देन और इक्वल टू B है और B लेस देन और इक्वल टू A, तो ऐसा दो इंटीजर आपके पास कोई डिफरेंट नहीं हो सकते. वो दोनों के दोनों इंटीजर्स आपके पास सेम ही होंगे. दैट्स व्हाई A इक्वल्स टू B. और ऑब्वियसली ट्रांजिटिव भी होगी ये प्रॉपर्टी. A less than or equal to B and B less than or equal to C must implies A less than or equal to C. अगर A B से less than or equal to नंबर है, इंटीजर के केस में हम जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज को ही कंपेयर कर रहे हैं. अगर A B से less than or equal to है और B C से less than or equal to है, तो ऑब्वियसली A C से भी less than or equal to होगा. अभी ये वाला रिलेशन आपने देखा कि लेस देन और इक्वल टू साथ में था, तो ये रिलेशन जो था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया. और यस, इंटीजर्स का सेट ओवर लेस देन विद द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बन गया. अभी आगे बात करेंगे फिर क्या होगा अगर लेस देन और इक्वल टू को सिंपल किससे रिप्लेस करें? स्ट्रिक्टली लेस देन से. तो सोचिए अब क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन रहेगा? ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को क्या अभी भी ये सेटिस्फाई करेगा? तो एक बात तो यहां पर क्लियर है कि ये नहीं करेगा. इंटीजर्स का सेट जो है वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट नहीं रहेगा इस रिलेशन के अंडर. उसका रीजन क्या है वो देखिए. उसका रीजन है क्योंकि ये रिलेशन जो है फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा,
ये चीज हम तभी लिख पा रहे थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू की ऑप्शन थी। कोई भी दो नंबर्स को अगर हमने लिखना है इंटीजर में, यहाँ पर अगर इक्वल टू है तभी हम उनका आपस में रिलेशन बना सकते हैं। स्ट्रिक्टली लेस देन में हम इसको नहीं लिख सकते। सो z लेस देन अंडर द रिलेशन स्ट्रिक्टली लेस देन इज नॉट ए पोसेट। चलिए और एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द रिलेशन डिवाइड्स a divides b, a related to b if a divides b, and here the main thing which we have to note here is the relation is over positive non-negative integers z plus, means this set contains non-negative integers 0 1 2 3 4 5 6 up to so on, only non-negative integers। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट के लिए रिलेशन हमारे पास डिफाइन किया हुआ है डिवाइड्स। तो जैसे मान लीजिए 2 और 4 आपस में रिलेटेड है बिकॉज 2 डिवाइड्स 4। 2 और 3 आपस में रिलेटेड नहीं है बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड्स 3। अब यहां पर मैं वो लेस देन और इक्वल टू वाली बात फिर से दोहरानी चाहूंगा। आपने कहा, हमने डिस्कस किया कि 2 डिवाइड्स 4 है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं 2 रिलेटेड टू 4 है, तो आप ये चीज लिख देंगे 2 is less than or equal to 4, means less than or equal to means here relation 2 is related to 4। अभी हमें पता है 2 does not divides 3, 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, तो फिर आप क्या कहेंगे 2 is not less than or equal to 3। तो अभी आप कहेंगे नॉट लेस देन और इक्वल टू, तो मैं बार बार यही बात रिपीट करूंगा, यहां पर लेस देन और इक्वल टू का मतलब आपको न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना कि 2 की न्यूमेरिक वैल्यू 3 की न्यूमेरिक वैल्यू से कम होती है तो ये सही यहां पर नॉट क्यों डाला है, नहीं, यहां पर आपको देखना है रिलेशन। 2 3 को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब 2 3 के साथ रिलेटेड भी नहीं है, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2 लेस देन और इक्वल टू डज नॉट, फिर इसको काट देंगे, दैट मींस 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3 अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान से गुजरना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो लेस देन और इक्वल टू के लिए जो हमारा प्री सेट है माइंड में कि न्यूमेरिक वैल्यूज को ही वो कंपेयर करता है, उसको हमें इस टॉपिक के लिए उसको एक साइड पे रखना होगा। यहां पर लेस देन और इक्वल टू का मतलब होगा सिंपली रिलेशन। तो अभी चेक करते हैं ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव ए डिवाइड्स ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जेड प्लस, ठीक है, हर एक इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर अपने आप को तो डिवाइड कर ही लेगा। ए डिवाइड्स ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जेड प्लस। एंटीसिमेट्रिक, ये भी सही है। अगर आप कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, मैं यहां पर जोर दूंगा इस बात पे क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव या आप कह लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ए डिवाइड बी को करता है और बी डिवाइड ए को करता है तो ये तभी पॉसिबल है अगर ए इक्वल्स टू बी होगा। दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर इक्वल हैं, अदरवाइज कोई दो डिफरेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे नहीं हो सकते जो एक दूसरे को डिवाइड करें। तो यस, ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ऑब्वियसली अगर ए डिवाइड्स बी है और बी डिवाइड सी है तो जाहिर सी बात है ए सी को भी डिवाइड करेगा। For every a b c belonging to z plus, so the relation divides over the set of non-negative integers is a partial ordered relation। अब फिर से अब कीजिए, क्या कीजिए आप, इस बार आप सेट को बदल दीजिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बजाय आप सेट लीजिए इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, अब नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या होगा, अब क्या ये रिलेशन रहेगा हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, या z जो सेट है वो अंडर डिवाइड्स क्या पोसेट रहेगा? तो सोचिए इसके बारे में, क्या हो जाएगा या फिर कहीं दिक्कत आने वाली है तीनों में किसी भी एक प्रॉपर्टी में? तो ध्यान दीजिए किस प्रॉपर्टी में इस यहां पर प्रॉब्लम आएगी। यस, इन द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसिमेट्रिक, बिकॉज अभी आपके पास नेगेटिव भी आ गए। तो ये देखिए एक एग्जांपल कोट की है, 2 डिवाइड्स माइनस टू ऑल्सो डिवाइड्स 2। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल हैं?
नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है. 2 is not equal to -2. So this relation is not antisymmetric. तो पिछली एग्जांपल में हमने क्या देखा, अगर हमने रिलेशन को चेंज किया, सेट वही रहने दिया, जो पिछली स्लाइड थी हमारी, ये देखिए, इसमें हमने क्या किया था, जो हमारा रिलेशन था उसको चेंज किया था, लेस देन और इक्वल टू की बजाय क्या लिया था, लेस देन. सेट वही रहने दिया, तो क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो वो पार्शियल ऑर्डर नहीं रहा. अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा, इसमें हमने किसको रिप्लेस किया, सेट को. पहले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट था, अब सारा सेट इंटीजर्स का ले लिया, तो भी एक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई, कौन सी, एंटीसिमेट्रिक, और ये पार्शियल ऑर्डर नहीं रहा. तो इसका मतलब आपको एक सेट और एक रिलेशन, उसके बारे में पहले अच्छे से स्टडी करना है कि वो हमें क्या गिवन है, फिर आप किसी डिसीजन पर पहुंच पाएंगे. फिर आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे. अगर तीनों की तीनों वेरीफाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होगा, और अगर एक भी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है तो ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा. इन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गई होगी आपको दोनों एग्जांपल्स. चलिए एक एग्जांपल इसकी हम लेते हैं. द रिलेशन ऑफ सबसेट, एंड दिस इज डिफाइंड over power set of a set X. Power set, you all are aware of the power set. Power set means it is the collection of all the possible subsets of a set X. तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर मान लेता हूं, मान लीजिए सेट X आपको दे रखा है. सेट X में आपके पास है दो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए, छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करूंगा, 1, 2. तो पावर सेट में क्या क्या आएगा, एक तो इसका एक पॉसिबल सबसेट, क्योंकि ये हर एक सेट का सबसेट होता है, दैट इज 5. और फिर आ जाएगा सिंगल सेट 1, हमें इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं. और फिर आ जाएगा सिंगलेटन सेट 2, और देन फिर इसका अगला पॉसिबल सबसेट क्या होगा, द कंप्लीट सेट X. तो ये इसका पावर सेट ऑफ X का ये पावर सेट बन गया. P ऑफ X के साथ इसको हम डिनोट करते हैं. तो ये होता है हमारा पावर सेट ऑफ X. तो X सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके रिलेटेड आप उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पावर सेट बना लेना है. तो अब पावर सेट X के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सबसेट का. तो चेक करना है कि क्या ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और पावर सेट अंडर द रिलेशन सबसेट एक पार्शियल ऑर्डर सेट है या नहीं है. तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे. Yes, it is reflexive because we can say that every set is a subset of itself. A is a subset of A for every A belonging to Px. Antisymmetric, if you say A is a subset of B and B is a subset of A, then obviously A is equal to B. कोई भी दो सेट अगर आप कह रहे हैं एक दूसरे का सबसेट्स हैं, तो वो तभी बन सकते हैं जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे. और ट्रांजिटिव, A subset of B, B subset of C, then obviously A must be the subset of C for every ABC belonging to Px. So power set of X under the relation subset is a partial ordered relation. और ये तीन एग्जांपल्स जो मैंने कोट करी हैं, एक तो थी एग्जांपल ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर द रिलेशन यूजुअल लेस देन और इक्वल टू. दूसरी एग्जांपल थी ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अंडर द रिलेशन डिवाइड्स. और थर्ड एग्जांपल थी the relation subset over the set power set of X. तो मेजरली आपके सिलेबस में जो है ये तीन एग्जांपल्स को लेकर हम आगे एग्जांपल्स और जो फर्दर टॉपिक्स आएंगे उनमें क्रिएट करते रहेंगे. तो ये तीन रिलेशंस जो है ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये तीनों रिलेशंस जो हैं ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जो रिलेशन की डेफिनेशन है और जो सेट की डेफिनेशन है वो एज इट इज ही हमारे पास रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. मेजरली ये तीन रिलेशंस कंटिन्यू रहेंगे आगे, बाकी और जो नए रिलेशंस आएंगे उनको हम वेरीफाई करते रहेंगे कौन सा पार्शियल ऑर्डर है और कौन सा नहीं है. तो अगली वीडियोस में आपको इसके फर्दर जो टॉपिक है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का, इसमें फर्दर जो डायग्राम हैश डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट है, जो लैटिसेस का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कशंस होंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में. So thank you very much.